Moreover, I think it's been heartwarming to serve as a source of inspiration for all the married women out there, especially the working mothers. So it has been amazing in one word if I have to describe. Thank you. Now coming to our first runner-up, Sonal Davda, Head of Marketing and Corporate Communications and a theatre actor in Dubai, was crowned Marvelous Miss India first runner-up and Marvelous Mrs. India fashion icon. Awarded Middle East Woman Award, Best Marketing Leader. Thank you so much for the question. MMI Marvelous Mrs. India is all about beauty inside out. It's not only about the outside beauty, but the intrinsic inner beauty, which is very important. So hence fostering a very positive, healthy mindset and also embracing a holistic approach is very important for a professional and a personal growth and for becoming a better version of your own self. Marvelous Mrs. India has helped me to transform myself into a very courageous person. From an individual rescuer till a director of a Guardians of Paws. I'm very thankful to Dr. Aditi and my team MMI for helping me and supporting me in this. Thank you. Thank you, Neelam. Now coming to presented Marvelous Mrs. India in China for Mrs. Globe. How was your experience? My experience has been life-changing, very transforming. I wanted to get out of my comfort zone and try new things. And I told Aditi ma'am that why didn't you start Marvelous Mrs. India earlier? So I could have met her earlier. So it has been an incredible journey and I am truly inspired by her, whatever she does. I mean, she's not only a beauty queen, she's also a doctor. And she set an example for all the married women to go ahead and not pause themselves at one place and keep getting forward in life. To say this, that just believe yourself, do not doubt even for a single moment, because I believe that you always underestimate yourself, and Dr. Aditi and her team, they have always inspired me. They have always taken their time out, all the mentors and everything. So I think MMI has that whole army who can help you to achieve your dreams. So I believe I would like to tell every aspirant out there to look out for the right opportunity, and which I can assure. डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बिकॉज आई थिंक आप सब लोग देखे होंगे मैरिड वुमेन जो काम भी करती है, बच्चे भी रेस करती है और भी बहुत सारी चीज़ें करती है. सो आई वुड नॉट से कि डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपकी करने की इच्छा है, अगर आप पैशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो, सो आप बैलेंस कर लेते हो. सो प्रिपरेशन करना हार्ड था, बट मैंने जो भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था घर के काम के बाद या फिर क्लिनिक के बाद, आई यूज़ टू डेडिकेट इट टू माई मार्वलस प्रिपरेशन. जो क्लिनिक में लंच ब्रेक्स होते थे, मैं वो यूज़ करती थी प्रिपरेशन करने के लिए. वॉक करने के टाइम घर पे काम करते वक्त मैं हील्स में वॉक करती थी ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में और काम भी हो जाए. सो एंड आफ्टर आई हैव अ 3-year-old सन, तो वो सोने के बाद मैं बाकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती थी वो सब करती थी. So it's hard, but I would say it is doable. Agar if you put your heart and mind to it, you can achieve anything, and I believe that now. Also, Aditi ma'am को trainer रह चुकी है, कितना inspire होती है उनसे और क्या-क्या tips मिली थी उनसे? सारी टिप्स मिली थी आई गेस, क्योंकि ये मेरा पहला ही पैजेंट था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैजेंट्री करूँगी, बट मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर से ज़्यादा और भी चीज़ें करनी है और मैं कर सकती हूँ. सो आई थिंक इट वाज द राइट टाइमिंग फॉर मी कि डॉक्टर अदिति ने उस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिस टाइम पे मेरी मेडिकल एजुकेशन ख़त्म हो गई थी. आई वाज लुकिंग टू डू समथिंग मोर देन मेडिसिन. उनसे प्रेरणा वो सिर्फ पार्टिसिपेशन की ही नहीं मिली, बट आगे कैसे बैलेंस करने हैं अपने मल्टीपल करियर को एंड स्टिल staying true to yourself, still being authentic. I think that's the biggest lesson I've learned from her.
आई थिंक कई बार जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये पैटर्न करना है, उस जर्नी में जब ही शुरुआत की टिल जब ही हुआ, कई बार मेरे मन में यही आया कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्टीज थी, ऑब्स्टिकल्स थे, क्योंकि वन मैन आर्मी जैसे कहते हैं, तो ऐसे नहीं था कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी या स्पॉन्सर्स थे, तो खुद ही सब करना पड़ा। बट इट वॉज अ लर्निंग लेसन एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो आपको आपके पड़ाव आते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसी से आप सीख सकते हो। सो हियर आई एम ऑल सेट टू लॉन्च मार्वलस मिसेस इंडिया सीजन 2 एंड आई डू होप दैट आई हैव सपोर्ट, लाइक आई सेड अर्लियर, के सब सपोर्ट करें एंड या दैट्स हाउ एम्पावरमेंट। एक महिला घर में जाके अगर इमोशनल अब्यूज़ सफ़र कर रही है, इट नीड नॉट, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ नो, लेकिन इमोशनल अब्यूज़ भी होता है। जैसे ऑफिस कोई जाती है महिला, तो कई बार उसके कॉलीग्स जो होते हैं वो बोल रही है, उसके ऊपर आवाज़ चढ़ा के बात करते हैं, तो वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग है। इसको माइक्रो अग्रेशन कहा जा सकता है। तो बाउंड्रीज होती है कि उसे नो कहना डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं नहीं बोलूँगी तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको भी महिलाओं को अवेयर कराना, इसे विमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। और मेरा ये मानना नहीं है कि नहीं आप झगड़ा करो, फाइट करो, लेकिन अपने आप पे भरोसा करो, कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि इट इज शोन, रिसर्च बताता है कि महिलाएं और जो मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स है, तो इफ़ दे आर इक्वली एजुकेटेड, तो एक आदमी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसे पे ज़्यादा मिलता है। एंड आई एम नॉट हियर टू से कि फेमिनिस्ट हो और ये सब नहीं मैं कहना चाहती, नो, नॉट एट ऑल। Men and women should be given equal opportunities. There was not a lot of pressure because all the participants were under a certain scrutiny, but now because of the social media pressure, certain way you conduct yourself, the makeup, the way you talk, the grace you carry, how difficult or easy is it for you as a founder to groom your new babies? Well, that's an interesting question. I wish there was social media at that time. I think I would have been a lot more popular. But yeah, I mean, see, social media is a double-edged sword, right? It's the way you use it. It can be negative and it can be positive. So we use social media to spread this message of, that of beauty inside out, really, and don't go with what is seen purely on social media. We have our social media queen here who loves social media, and we are like trying to control her. Okay, don't post your sneeze and don't post your visit to the doctor, etc. But yeah, I mean, we use it to spread awareness, and I really wish it was there when I participated in Mrs. World. पांचों में से कोई भी उत्तर दे सकता है। शादी के बाद घर से ससुराल से कितना सपोर्ट मिलता है? वेल, मेरा पहला क्वेश्चन अदिति को यही था। आई एम जस्ट अ होम मेकर। डॉक्टर अदिति ने वो जस्ट वर्ड ही रिजेक्ट कर दिया, एंड शी सेड यू आर अ स्ट्रॉन्ग होम मेकर। होम मेकर जो कर सकते हैं वो शायद ही कोई और कर सकता है। 24/7 वी आर बिजी, एंड विद दैट बिजी स्केड्यूल I wanted to remove a time for my practice, for my session, for my workout, and beautifully I have handled it. Definitely my family is the biggest strength, my kids, my husband, they are the biggest supporter for me, but definitely team MMI, इन्होंने मुझे जो support दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकती. Thank you Dr. Aditi. Aditi, सबसे पहले बहुत congratulations. I would like to compliment आप इतने साल पहले जैसा दिखते पहले it was like a body shaming you could say. तो अभी the changes, how do you see and how good it is like and how are you going to take it forward also? जी, मेरा यही मानना है कि जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी इनसाइड आउट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैं रिपीट करते रहूँगी इस बात को, क्योंकि एक महिला अगर 5 फीट है या 4 फीट 8 इंचेस है, तो क्या वो ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? उसकी क्या गलती है? अगर वो ब्यूटीफुल है तो शी इज़ ब्यूटीफुल। अ 70-year-old, और मेरा यही, मुझे बहुत महिलाएं पूछती है कि मैम आपका अपर लिमिट क्या है? आई से क्यों अपर लिमिट रखना चाहिए ब्यूटी को? वाई कांट अ 80-year-old पार्टिसिपेट इन अ ब्यूटी पैजेंट? एंड द थिंग इज़ कि हम ये नहीं कहते कि 80-year-old विल
उनका कंपटीशन एक 22 साल की या 23 साल की महिला के साथ होगा, जैसे उन्होंने कहा कि वो अपने आप से कंपटीशन होगा, और वही हम देखते हैं कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आई स्टैंड वेरी स्ट्रांगली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप एनरोल करती हैं और आपकी जो जर्नी हमारे साथ शुरू होती है, एंड तक आप कैसे बदलाव आपने लाया है अपने आप में। ज़रूर मैं हानि हमारी जो टीम मेंबर है, स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर है, देर आर अदर पीपल ऑल्सो, तो ये गाइड तो हम करते रहते हैं, लेकिन जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो खाने का क्या यूज़ है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे हम ब्यूटी कहते हैं कि अपने आप को एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योरसेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि यू वर मिसेस वर्ल्ड एंड हमने अक्सर देखा था कि शादी के बाद एक बहुत सारे कमिटमेंट हो जाते हैं, फैमिली, बच्चे एंड ऑल दोस थिंग। तो बहुत बार हमारी जो ड्रीम रहते हैं या उम्मीदें होती है वो इनफैक्ट एक फैमिली में वक्त निकल जाता है। तो दैट इज़ मोस्टली अ रीज़न फॉर मेनी ऑफ देम एंड यू आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म एंड एन एनकरेजमेंट फॉर द थिंग। एंड सेकेंड इज लाइक मिस इंडिया, मिस मार्वलेस भी होगा एक्चुअली, कि अभी आप सिर्फ ओनली मिसेस को प्रेजेंट कर रहे हैं? मैं अभी फोकस मिसेस पे ही रखूँगी क्योंकि मिस के लिए तो ठीक है, आई मीन देर आर अदर पैजेंट्स, ऑफ कोर्स मिसेस के लिए भी है, लेकिन आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर मिसेस कैटेगरी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि फैमिली लाइफ में बच्चों की देखभाल करने में बहुत टाइम निकल जाता है, एक महिला अपने आप को भूल जाती है। और जब मैं बड़ी हो रही थी मैंने यही देखा था कि अगर घर में कुछ अच्छी चीज़ आती है, मिठाई आती है, तो माँ हम लोग को देती, खुद नहीं खाती। तो मिठाई नहीं खाती थी, वो अच्छी बात है, शी इज टच वुड वेरी हेल्दी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अपने आप को सेल्फ केयर जो होती है वो भूल जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, किसी की वाइफ, किसी की माँ, हु आर यू। और ये जब एहसास होता है देन इट्स टू लेट। तो बहुत वो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। तो इन सब से ये आई चैलेंज के थिंक अबाउट हु यू आर। रोज़ अगर 10 मिनट भी आप सोचो कि थिंक अबाउट योर सेल्फ, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप वही चीज़ें कर रहे हो जो आपके पति बोल रहे हैं या बच्चे बोल रहे हैं, आपकी वॉइस आप खो चुके हो। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जाके झगड़ा करो, बट व्हेन यू डू दैट यू विल अर्न रिस्पेक्ट, योर चिल्ड्रन विल रिस्पेक्ट यू।